إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. وقال تعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء وأنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. नाम अहमद से दिलों को सुरूर मिलता है, नाम अहमद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फ़िक्र को ताज़ा शुऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो मोहम्मद का वास्ता देके, नसीब कैसा भी हो मोहम्मद का वसीला देके, खुदा से जो मांगे ज़रूर मिलता है। बुज़ुर्गान महतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता जुमों में मेरे और आपके आका सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुनियादी और अहम तरीन हुकूक़ पर बात की गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसी ज़ात हैं, सारी ज़िंदगी आपके औसाफ़ व कमालात को बयान किया जाए, आपकी एक एक चीज़ को बयान किया जाए, आपकी एक एक अदा को बयान किया जाए, आपकी एक एक सुन्नत और एक एक तरीक़े को बयान किया जाए, तब भी कम है।
ہم نے ارادہ کیا ہے کہ 3 چیزوں پر 3 جمعہ میں بات کی جائے۔ پہلی چیز نام مصطفیٰ، دوسری چیز مقام مصطفیٰ، تیسری چیز کام مصطفیٰ۔ نبی کا نام، نبی کا مقام اور نبی کا کام، اور یہ بہت ہی بہترین چیزیں ہیں، کام کی چیزیں ہیں، سننے کی بولنے کی چیزیں ہیں، کرنے کی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 نبی کا نام، نمبر 2 نبی کا مقام، نمبر 3 نبی کا کام۔ آج انشاءاللہ تعالی نبی کے نام پر بات ہوگی، نبی کے اسم پر بات ہوگی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، اس کی پہچان کے لیے، اس کی شناخت کے لیے، اس کے تعارف کے لیے۔ اگر کسی چیز کا کوئی نام نہ ہو تو اس کی پہچان نہیں ہو سکتی، اس کا تعارف نہیں ہو سکتا، اس کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہونا ضروری ہے، اور دستور بھی یہی ہے، قانون بھی یہی ہے کہ ہر چیز کا اس کے مطابق، اس کے موافق کوئی نہ کوئی نام ہو۔ جب تک نام نہ ہوگا اس وقت تک اس کی پہچان نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کی شناخت نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کا تعارف نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم، فخر کائنات، خلاصہ موجودات، تاجدار عرب، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، سید الاولیاء، سید الاصفیاء، شافی محشر، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نام دیے ہیں۔ نام دیا نہیں، نام دیے ہیں۔ ایک نام ہوتا تو میں کہتا کہ اللہ نے نام دیا ہے، اللہ نے نام رکھا ہے۔ اللہ نے نام نہیں، ناموں کو دیا ہے۔ اللہ نے نام نہیں، ناموں کو دیا ہے۔ اللہ نے ناموں کو رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی کے ناموں کی 2 قسمیں ہیں، 2 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی قسم نبی کے ذاتی نام، جسے ہم خاص نام کہہ سکتے ہیں، نبی کے ذاتی نام۔ اور دوسری قسم نبی کے صفاتی نام، پیار کے نام، عرف کے نام، محبت کے نام، لاڈلے نام۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں، ایک قسم نبی کے ذاتی ناموں کی، دوسری قسم نبی کے صفاتی ناموں کی۔ نبی کے ذاتی نام 2 ہیں، کتنے ہیں؟ بولو ذرا، 2 ہیں۔ اور یہ دونوں نام قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں۔ نبی کا پہلا ذاتی نام محمد، کیا ہے؟ محمد۔ اور پورے قرآن پاک کے اندر 4 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نام کو ذکر کیا ہے۔
एक मरतबा सूरह आली इमरान में वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल एक जगह, और दूसरी जगह सूरह अहज़ाब में मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। तीसरी जगह सूरह मोहम्मद में वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। फिर चौथी जगह सूरह फतह में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये चार जगह अल्लाह ने हमारे नबी का ज़ाती नाम मोहम्मद ज़िक्र किया है। फिर नबी का ज़ाती और एक नाम है जो कुरान और हदीस में आया है। कुरान पाक में एक मरतबा सूरह सफ में आया है मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। अहमद हदीसों के अंदर भी आया है। और इसके अलावा नबी के सिफाती नाम हैं और वो बेशुमार हैं, बेमिसाल हैं, लाजवाब हैं। हज़रत मौलाना इमदादुल्लाह अनवर साहब दामत बरकातुहुम मोहम्मद फयूज़ुहुम, इन्होंने अपनी किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 नामों को ज़िक्र किया है। मशहूर क्या है? अल्लाह के 99 नाम, अल्लाह के नबी के 99 90 पर 9 नाम। मशहूर तो यही है ना। कुरान पाक के अट्टों में कुरान पाक शुरू होने से पहले और कुरान पाक के ख़त्म पर यही नाम ज़िक्र किए जाते हैं जो मशहूर व मारूफ़ हैं। मौलाना इमदादुल्लाह अनवर साहब ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 नामों को ज़िक्र किया है और हर नाम के बारे में मुस्तकिल बहस की गई है। हर नाम के माने को बयान किया गया है, हर माने की तशरीह की गई है, हर नाम की अज़मत को बयान किया गया है, हर नाम की फजीलत को बयान किया गया है। और वो नाम रखने पर क्या असरात होते हैं, वो नाम रखने पर बच्चे पर क्या असरात पड़ते हैं, क्या सिफात पैदा होते हैं, तमाम चीज़ों को तकरीबन 350 सफ़हात की किताब में लिखा है। और एक किताब है सिर्फ नबी के नामों पर 750 सफ़हात पर मुश्तमिल है। कितने सफ़हात? सिर्फ नबी के नामों पर 750 सफ़हात पर किताब लिखी गई है। नबी के नाम का ये आलम है तो नबी के मकाम का क्या आलम होगा, नबी के काम का आलम क्या होगा। उसके लिए कितनी किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए कितने सफ़हात की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए कितने कलमों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए कितनी स्याही की ज़रूरत पड़ेगी। तो नबी के नामों की 2 किस्में, एक किस्म ज़ाती नामों की, दूसरी किस्म सिफाती नामों की। नबी के 2 ज़ाती नाम हैं, एक मोहम्मद
और एक अहमद, और नबी के सिफाती नाम मौलाना इमदादुल्लाह अनवर साहब ने 1000 जिक्र किए हैं, और उसके अलावा और भी हैं। नबी का एक ज़ाती नाम मोहम्मद है। मोहम्मद इतना प्यारा नाम है, इतना अच्छा नाम है, इतना बेहतरीन और अजीम तरीन नाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाम से इस नाम को निकाला है, अपने नाम से इस नाम को निकाला है। अल्लाह का एक नाम महमूद है, तो उसी महमूद से इस मोहम्मद को निकाला गया है। और ये मोहम्मद और अहमद ये दोनों नाम हम्द से बने हैं। हा मीम दाल ये 3 हर्फ हैं, और इसका माना आता है तारीफ, सना, मदह सराई। तो इसी तारीफ से नबी का नाम निकला है, नबी का नाम निकाला गया है। और मोहम्मद में और अल्लाह के नाम में बड़ी मुशाबहत है। अल्लाह ने जोड़ कर बनाया है, अल्लाह ने जोड़ कर बनाया है। देखिए, अल्लाह का नाम है, लफ्ज़ अल्लाह ये अल्लाह का ज़ाती नाम है, अल्लाह का ख़ास नाम है। उसके अलावा जितने भी नाम हैं वो सब के सब सिफाती नाम हैं। अल्लाह का ज़ाती नाम, ख़ास नाम अल्लाह है। लफ्ज़ अल्लाह के अंदर भी 4 हुरूफ हैं। हमारे नबी का ज़ाती नाम मोहम्मद है, और इस नाम के अंदर भी 4 हुरूफ हैं। अल्लाह के ज़ाती नाम में किसी हर्फ पर कोई नुक्ता नहीं है। अल्लाह के नबी के ज़ाती नाम में किसी हर्फ पर कोई नुक्ता नहीं है। जोड़ कर बनाया। फिर इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी के नाम के अंदर यह खुसूसियत रखी है तारीफ़ की। हा मीम दाल, हम्द, तारीफ़। और कुरान पाक से इसे जोड़ा है। कुरान पाक का शुरू कहाँ से होता है जी? सूरतुल फातिहा से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्हम्द से कुरान पाक शुरू होता है। अल्हम्दु का अलिफ लाम निकाला जाए तो बचता है हम्द। अल्हम्दु से अगर अलिफ लाम निकाला जाए तो बचता है हम्द। और नबी के नाम से मीम निकाला जाए शुरू का तो बचता है हम्द। और नबी का दूसरा ज़ाती नाम अहमद, उससे अलिफ निकाला जाए तो बचता है हम्द। तो कुरान पाक के अंदर अगर शुरू का अलिफ लाम निकाला जाए तो बचता है हम्द। नबी के नाम में शुरू का मीम निकाला जाए तो बचता है हम्द। नबी के नाम अहमद में शुरू का अलिफ निकाला जाए तो बचता है हम्द। तीनों जगह कुरान पाक में भी हम्द, मोहम्मद नाम में भी हम्द, अहमद नाम में भी हम्द। अल्लाह ने बता दिया कि कुरान पाक भी तारीफ वाला, कुरान वाला भी तारीफ वाला। कुरान पाक भी तारीफ वाला, हम्द वाला, सना वाला, मदह वाला। कुरान पाक को लेकर आने वाला वो भी तारीफ वाला, वो भी सना वाला, वो भी हम्द वाला। और ये जो मोहम्मद नाम है कोई मामूली नाम नहीं है।
हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में किताबों में लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ शीस, ऐ मेरे बेटे, मेरे बाद तुम मेरे खलीफा हो, मेरे बाद तुम मेरे खलीफा हो, मेरी इस खिलाफत को संभालना, मेरी इस खिलाफत को संभालना, और मैं अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम के ज़िक्र के साथ मोहम्मद के नाम का भी ज़िक्र करता हूँ। हज़रत आदम अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह के नाम के ज़िक्र के साथ मोहम्मद के नाम का भी ज़िक्र करता हूँ। ऐ मेरे बेटे, तुम भी अल्लाह के ज़िक्र के साथ मोहम्मद का भी ज़िक्र किया करना। और ये जो मोहम्मद नाम है, मैंने अल्लाह तबारक व तआला के अर्श पर दाएं जानिब लिखा हुआ देखा, और जब मैं आसमानों का चक्कर लगाया तो आसमानों पर भी मैंने मोहम्मद नाम लिखा हुआ देखा। मैंने जन्नत के दरवाज़े को देखा तो जन्नत के दरवाज़े पर भी मोहम्मद नाम लिखा हुआ देखा। मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो जन्नत की हर दीवार पर, जन्नत के हर पत्ते पर, जन्नत की हर हूर के सीने पर, जन्नत के हर कमरे पर मैंने मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। मैंने फरिश्तों की पेशानी पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। ऐ मेरे बेटे शीस, जब अल्लाह का जिक्र करना तो मोहम्मद का भी जिक्र करना, मोहम्मद का भी जिक्र करना। हर जगह अल्लाह तबारक व तआला के साथ हमारे नबी का नाम लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाएगा वहाँ वहाँ हमारे नबी का नाम भी लिया जाएगा। और ये अल्लाह का वादा है कि क़ियामत तलक अल्लाह के नाम के साथ हमारे नबी का भी नाम रोशन होगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, कुरान पाक के 30वें पारे में सूरह अलम नशरा में अल्लाह ने कह दिया कि ऐ नबी जी, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे प्यारे, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया, हमने आपके नाम को बुलंद कर दिया। अब कोई माई का लाल उसको नीचे नहीं कर सकता। हर जगह जहाँ अल्लाह का नाम होगा वहाँ हमारे नबी मोहम्मद का नाम होगा। जहाँ जहाँ खुदाई होगी वहाँ वहाँ मुस्तफ़ाई होगी। जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई होगी वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई होगी। आप गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं, अज़ान के अंदर अल्लाह के नाम के साथ हमारे नबी का नाम, कलिमे में अल्लाह के नाम के साथ हमारे नबी का नाम, कुरान पाक में अल्लाह के नाम के साथ हमारे नबी का नाम, तौरेत में, इंजील में, ज़बूर में हमारे नबी का नाम, दुआओं में, कई दुआओं में हमारे नबी का नाम, नमाज के अंदर हमारे नबी का नाम, दरूद व सलाम के अंदर हमारे नबी का नाम, नमाज जनाजा पढ़ो उसमें हमारे नबी का नाम। अरे मर कर चले जाएं खबर के अंदर भी नबी का नाम, खबर से उठ जाएं हशर के मैदान में आ जाएं वहाँ भी नबी नज़र आ रहे हैं। लिवाउल हम्द झंडा नबी के हाथ में है, हौज़े कौसर पर नबी खड़े हुए हैं, शिफाअत करते हुए नबी खड़े हुए हैं, सिफारिश करते हुए नबी खड़े हुए हैं। हर फरिश्ते की ज़ुबान पर नबी का नाम है, हर हूर के सीने पर नबी का नाम है, हर पत्थर की चट्टान पर नबी का नाम है, हर परिंदे की उड़ान पर नबी का नाम है, अर्श व कुर्सी पर नबी का नाम है। कहना
ये चाह रहा हूँ, ज़मीन से लेकर आसमान तक, तहत सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक, जहाँ जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे या तो खुदा का नाम नज़र आएगा या मोहम्मद का नाम नज़र आएगा। हर जगह वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने नबी के नाम को बुलंद कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दूसरा नाम अहमद है, कुरान में भी आया है, हदीसों के अंदर भी आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी उम्मत के ख़ास लोगों ने, उनके हवारियों ने पूछा, ऐ नबी जी, ऐ ईसा, क्या हमारे बाद भी कोई उम्मत आएगी? हज़रत ईसा ने कहा, जी हाँ, हमारे बाद भी एक उम्मत पैदा होगी जिसे उम्मत मोहम्मदिया कहा जाता है, और वो बेहतरीन उम्मत है। उसके उलमा अंबिया के वारिस हैं, वो मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे। बहुत सारे सिफात को आपने गिनवाया और आखिर में कहा, मेरे बाद एक नबी भी आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा, जिनका नाम अहमद होगा। और हज़रात उलमा फरमाते हैं, आसमानों में हमारे नबी का नाम अहमद से मशहूर है, ज़मीनों में हमारे नबी का नाम मोहम्मद से मशहूर है, समंदरों में हमारे नबी का नाम माही से मशहूर है। माही कुफ्र को मिटाने वाला, शिर्क को मिटाने वाला, गुनाहों को मिटाने वाला, खताओं को मिटाने वाला, नाफरमानियों को मिटाने वाला, बेहयाइयों को मिटाने वाला, फहाशियों को मिटाने वाला, तमाम गुनाहों और खताओं को मिटाने वाले को माही कहते हैं। तो हमारे नबी का आसमानों में नाम अहमद से मशहूर है, ज़मीनों में हमारे नबी का नाम मोहम्मद से मशहूर है, और समंदरों में हमारे नबी का नाम माही से मशहूर है। याद रखेंगे, आसमानों में, आवाज़ नहीं आ रहा ना, अहमद से मशहूर है, ज़मीनों में मोहम्मद से मशहूर है, समंदरों में माही, बड़ी हा, माही से मशहूर है। और ख़ुद अल्लाह के नबी ने हदीस पाक में फरमाया, ली खमसतु अस्मा, मेरे लिए 5 नाम हैं, मेरे लिए 5 नाम हैं। अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ, व अना अहमद, मैं अहमद हूँ, व अनल माही, मैं माही हूँ, व अनल हाशिर, मैं हाशिर हूँ, व अनल आकिब, मैं आकिब हूँ। और उसके अलावा मैंने कहा ना शुरू में, 1000 नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किताबों में ज़िक्र किए गए हैं। 1000 नाम, ये कोई मामूली बात नहीं है। दस्तूर ये है कि जिससे ज़्यादा प्यार होता है, जिससे ज़्यादा मोहब्बत होती है, उसे नाम भी ज़्यादा दिए जाते हैं, उसे अलक़ाब भी ज़्यादा दिए जाते हैं। अब देखो, माँ को अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, अपने बेटे से मोहब्बत होती है, तो वो नए नए नाम अपने बच्चे को देती रहती है। उसका नाम कुछ और होता है, कभी चांद का टुकड़ा कहती है, कभी आँखों का तारा कहती है, कभी नूरे नज़र कहती है, कभी लख्ते जिगर कहती है, कभी मेरी जान कहती है। अजीब अजीब नाम माँ अपने बच्चे को देती है, अपनी औलाद को देती है, मोहब्बत की खातिर, प्यार की खातिर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे नबी से ज़्यादा अल्लाह को किससे मोहब्बत होगी? अल्लाह को किससे मोहब्बत होगी?
अल्लाह को हमारे नबी से बहुत मोहब्बत है, अल्लाह को हमारे नबी से बहुत प्यार है, अल्लाह हमारे नबी को बहुत चाहता है। तो ज़ाती नामों के साथ सिफाती नाम बेशुमार अता किए, बेहिसाब अता किए, बेमिसाल अता किए, लाजवाब अता किए। हजार नामों से ज़्यादा उलमा ने जिक्र कर दिए हैं, तो अल्लाह के इल्म में कितने नाम होंगे। और हुरूफ़े तहज्जी है ना, अलिफ से लेकर या तक, अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक, हर हर्फ से नबी का नाम आता है, हर हर्फ से नबी का नाम आता है, हर हर्फ से नबी की सिफत बयान होती है। हज़रात उलमा ने उसे भी बयान किया है। हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातहुम ने भी उसे बयान किया है। हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी ने उसे बयान किया है, क़ाज़ी मतीउल्लाह सईदी ने उसे बयान किया है, और दीगर उलमाए किराम ने भी उसे बयान किया है, और मज़ा ले लेकर बयान किया है। नबी के नाम मोहम्मद की बहुत सारी खुसूसियात हैं, बहुत सारी उसकी बरकतें, अज़मतें, फ़ज़ीलतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हदीस के अंदर कहा, तुसम्मू बिइस्मी, मेरे नाम के साथ तुम नाम रखो, यानी मेरा जैसा नाम है वैसा नाम तुम रखो। माँ बाप की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी औलाद की ये भी है कि अपनी औलाद को, अपने बच्चों को अच्छा नाम रखना, अच्छा नाम रखना, इसलिए कि क़ियामत के दिन उन्हीं नामों से उनको पुकारा जाएगा, उन्हीं नामों से उनको बुलाया जाएगा। नाम अच्छा होगा, क़ियामत के दिन भी उनको फ़ख्र होगा कि कितना मेरा अच्छा नाम है, मेरे माँ बाप ने कितना अच्छा नाम रखा है। अगर ऐसे वैसे बिंगे टिंगे नाम होंगे, उनको वहाँ भी शर्म महसूस होगी, उनको वहाँ भी नदामत होगी। तो नाम बेहतरीन रखने चाहिए, इसलिए कि नामों का असर इंसान की ज़ात पर पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा के नामों को तब्दील किया, उनके पुराने नामों को हटाकर नए नाम अल्लाह के नबी ने दिए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में बैठे हुए थे, कहा कि इस बकरी का दूध निथारो। एक सहाबी उठे, अल्लाह के नबी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे मुर्रा। मुर्रा कहते हैं कड़वे को। अल्लाह के नबी ने कहा बैठ जाओ। और एक सहाबी उठे, अल्लाह के नबी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा हर्ब। हर्ब कहते हैं जंग को। अल्लाह के नबी ने कहा बैठ जाओ। तीसरे सहाबी उठे, अल्लाह के नबी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा यईश, जिंदगी, जिंदगी गुजारने वाला। अल्लाह के नबी ने कहा तुम दूध निथारो, तुम दूध निथारो। बाकायदा अल्लाह के नबी अच्छे नामों का इंतखाब करते थे, बुरे नामों को बदलते थे। एक मर्तबा जिहाद के सफ़र से वापस हो रहे थे, रास्ते में दो पहाड़ मिले। दोनों पहाड़ों के दरमियान से रास्ता जाता था। अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा इन दो पहाड़ों के कोई नाम है या बेनाम है? ये दो पहाड़ों के कोई नाम है या ये पहाड़ बेनाम है? सहाबा ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, इन दोनों पहाड़ों के नाम हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या नाम है? सहाबा ने कहा एक का नाम है, एक का नाम है काज़े, एक का नाम है मुक़ज़ी, यानी जलील करने वाला, रुसवा करने वाला। ये दो पहाड़ों के नाम थे। अल्लाह के नबी ने रास्ता बदल दिया, दूसरे रास्ते से सहाबा को लेकर गए
कि ज़लील करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, इस रास्ते से हम नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो अच्छे से अच्छा नाम रखना और खुसूसन मोहम्मद नाम रखना, इसकी बड़ी अज़मतें हैं, इसकी बड़ी फजीलतें हैं, इसकी बड़ी बरकतें हैं। हज़रात उलमा ने लिखा है, अगर किसी को औलाद ना हो रही हो, किसी को बच्चे ना हो रहे हो, वो दिल में ये इरादा कर ले, दिल में ये तमन्ना कर ले, अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे बच्चा देगा तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला इस नाम की बरकत से उसे औलाद अता करेगा, उसे औलाद अता करेगा। हमारे मुहद्दिसीन की लिस्ट में, मुहद्दिसीन की दुनिया में एक मुहद्दिस ऐसे मिलते हैं जिनकी 14 पुश्तों में मोहम्मद नाम था, जिनकी 14 पुश्तों में मोहम्मद नाम था। मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद, इस तरह 14 पुश्तों में मोहम्मद नाम था। किसी ने उन्हीं की नस्ल के एक बुजुर्ग से पूछा, ये 14 पुश्तों में मोहम्मद नाम क्यों रखा गया है? तो उन्होंने कहा, हमारे सबसे बड़े जो बुजुर्ग हैं जिनका पहला नाम मोहम्मद है, उनको औलाद नहीं हो रही थी। उन्होंने इरादा किया, मुझे अगर अल्लाह औलाद देगा, मुझे अगर लड़का देगा तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूँगा। अल्लाह ने उनको औलाद अता की। उसके बाद यही सिलसिला चल पड़ा, 14 पीढ़ियों तक मोहम्मद मोहम्मद ही नाम है। और आज भी कई ऐसे घर हैं उलमा के जिनके 4 बच्चे हैं, सारे बच्चों के नाम मोहम्मद हैं। मोहम्मद अव्वल, मोहम्मद सानी, मोहम्मद सालिस, मोहम्मद राबे। कितने बेहतरीन नाम हैं। अल्लाह के नबी ने हदीस में यहाँ तक कहा, अगर किसी के 3 बच्चे हों, अगर 3 बच्चों में से एक बच्चे का नाम भी उसने मोहम्मद नहीं रखा तो उसने जहालत का काम किया, उसने जहालत का काम किया, उसने नादानी और कम इल्मी का काम किया। तो इसलिए अपने बच्चों को मोहम्मद नाम रखो, इस मोहम्मद नाम को इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, इतना आम करो, दुश्मनान इस्लाम कहने लगे, अरे हम एक मोहम्मद को मिटाने चले थे, यहाँ तो घर घर में मोहम्मद है, यहाँ तो घर घर में मोहम्मद है। किसी की मजाल ना हो, इतना फैलाओ, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। अपने नामों के साथ मोहम्मद के नाम को रखो। उसकी तरतीब है कि नाम किस तरह रखना है। अल्लाह का नाम हो तो उसके साथ क्या लगाना है, नबी का नाम हो तो उसके साथ क्या लगाना है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा में मज़ीद तफसील के साथ आपको बयान करूँगा। दुआ फरमाएँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कही गई बातों पर, सुनी गई बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना